پیش خدمت ہے قصہ حسن آباد۔ کسی زمانے کی بات ہے، کسی جگہ ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے ایک بیٹی تھی جس کا نام حسن آباد تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ حسن و رعنائی میں نہ چاند اس کی برابری کر سکتا تھا نہ سورج۔ چاند اس کے چہرے سے مات کھاتا تھا تو سورج اس کی آنکھوں سے۔ بہت سے ملکوں سے لڑکی کے لیے شادی کے پیغام آتے، لیکن بادشاہ سب کو صاف جواب دیتا تھا۔ حسن آباد کی ماں ایک غریب آدمی کی بیٹی تھی اور بادشاہ اپنی بیوی کو ہر وقت یہ کہہ کر طعنے دیتا رہتا تھا کہ تم ایک بادشاہ کی بیوی ہونے کے ناطے اچھا کھاتی پیتی اور اچھا پہنتی ہو، کسی غریب کی بیوی بنی ہوتی تو روٹی کے بدلے مٹی چبایا کرتی۔ حسن آباد کی ماں بیچاری بادشاہ کے طعنے سن کر بہت روتی تھی۔ ایسے موقع پر لڑکی اپنی ماں سے کہتی، امی جان، آپ ہرگز کسی امیر آدمی سے میری شادی نہ کیجیے گا، میری شادی کسی غریب ہی سے کر دیجیے گا۔ قسمت نے ساتھ دیا تو میں خود اپنے شوہر کو بادشاہ بنا دوں گی، میں اس کو اپنے باپ کی جگہ تخت پر بٹھا دوں گی اور اس سے سبھی غریبوں کا بھلا ہوگا۔ ایک دن بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ دفتن ایک کوگا کہیں سے اڑ کر آیا اور کھڑکی کے سامنے کے درخت پر بیٹھ کر زور زور سے کاؤں کاؤں کرنے لگا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے 400 صلاح کاروں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، یہ کوگا کیا کہتا ہے؟ صلاح کار بڑی دیر تک سوچتے رہے اور پھر انہوں نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اس کی بولی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ ٹھہرا ایک کوگا اور ہم انسان ہیں، شاید اس کو کچھ تفریح کرنے کی سوجی ہوگی، بس اسی لیے کاؤں کاؤں کر رہا ہے۔ جلاد، بادشاہ نے آگ بگولا ہو کر آواز دی۔ اسی وقت 14 جلاد سیاہ گدھوں کی طرح موجود ہوئے اور ایک آواز میں کہہ اٹھے، کس کی موت آئی ہے؟ ہم پلک جھپکتے میں اس کا سر بدن سے جدا کر دیں گے۔ ان سب کو لے جا کر گردنیں کاٹ دو، بادشاہ نے حکم دیا۔ اتنے میں حسن آباد دوڑ کر باپ کے پاس آئی اور اس نے کہا، ابا جان، اگر میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں تو کیا آپ ان کو چھوڑ دیں گے؟ ہاں، اگر تم نے جواب دیا تو میں ان کو چھوڑ دوں گا، بادشاہ نے جواب دیا۔ تو سنیے، حسن آباد نے کہا، یہ کوگا کہتا ہے کہ جو شوہر کو آسمان پر اٹھا دے وہ بیوی ہے اور جو اس کو مٹی میں ملا دے وہ بھی بیوی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس کے سر کا ایک ایک بال سوئی کی طرح کھڑا ہو گیا اور اس نے گرجتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہا، نالائق لڑکی، بے شرم کہیں کی، کیا تیرا مطلب ہے کہ میرا سارا سکھ چین تیری ماں کی بدولت ہے جو ایک کنگال کی بیٹی ہے؟ کیا بکواس ہے، میں تجھ کو زندان میں ڈال دوں گا تاکہ سب لڑکیاں اس سے سبق سیکھیں، اپنے باپ کے آگے اپنا منہ نہ کھولا کرے۔ بادشاہ نے حسن آباد کو زندان میں ڈال دیا اور اپنے صلاح کاروں کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ 1 مہینے تک منہ کالا کیے اداس خیالوں میں غرق اندر بیٹھا رہا۔ ایک دن اس کے بڑے وزیر نے اس کو سمجھایا، جہاں پناہ آپ یوں اندر ہی اندر نہ بیٹھے رہیں، ذرا اپنا دل بہلانے کی کوشش کریں، آئیے کہیں شکار کھیلنے چلتے ہیں۔ وزیر کے مشورے پر بادشاہ اپنے تمام 400 صلاح کاروں اور 40 وزیروں کو ساتھ لے کر شکار کھیلنے نکل گیا۔ شکاری 7 دن تک شکار کی تلاش میں گھومتے پھرے لیکن کچھ ان کے ہاتھ نہ لگا۔ بادشاہ کو بہت دکھ ہوا۔ وہ لوگ چلے جا رہے تھے کہ کچھ دوری پر ایک دریا دکھائی دیا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے کنارے پر آئے تو دیکھا کہ ایک سفید ریش بوڑھا کنارے پر بیٹھا ہے۔ وہ پانی سے چھوٹے چھوٹے پتھر نکالتا ہے اور ان پر کچھ لکھ کر پھر پانی میں ڈال دیتا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، اے بوڑھے، تم کون ہو اور یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا، میں ایک غریب آدمی ہوں، بھلا میں بادشاہ سے کیسے بولوں؟ بادشاہ نے کہا، میرے سوال کا جواب دو ورنہ ابھی تلوار سے تمہارے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ بوڑھے نے جواب دیا، میں لوگوں کی قسمتیں بتا رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اچھا تو یہ بتاؤ کہ میری سرکش بیٹی کی قسمت کیسی ہے؟ بوڑھے نے پانی میں ہاتھ ڈال کر مٹھی بھر کنکر نکالے اور ان کو دیکھتے ہوئے کہا، ایک ملک میں جس کا نام شہر جرجان ہے ایک بہادر نوجوان رہتا ہے، وہ ایک غریب چرواہے کا بیٹا ہے، اسی غریب نوجوان کے ساتھ تمہاری بیٹی کی شادی ہوگی۔ بادشاہ نے، جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، پوچھا، اس ملک تک کتنے دنوں کا راستہ ہے؟ کسی اچھے گھوڑے پر سفر کیا جائے تو 18 مہینے لگیں گے، بوڑھے نے جواب دیا۔ گھر لوٹنے پر بادشاہ 3 دن تک برابر سوچتا رہا کہ کیا کیا جائے تاکہ میری بیٹی اس ادنا چرواہے کو نہ ملے، اس کو بھوکوں مار ڈالوں یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں۔ بڑے وزیر کو بادشاہ کے ان سیاہ منصوبوں کا پتہ چل گیا، اس کو لڑکی پر رحم آ گیا، چنانچہ رات کو وہ اس کو زندان سے نکال کر اپنے گھر لے آیا۔ اگلے دن اس نے ایک بڑھئی کو بلایا اور اس کو بہت سے پیسے دے کر اس سے کہا، ایک ایسا صندوق بنا دو جس کے اندر کسی طرح پانی نہ جا سکے۔ صندوق بن کر تیار ہو گیا تو وزیر نے حسن آباد سے کہا، بیٹی آؤ اس صندوق میں لیٹ جاؤ، میں 40 دنوں کی خوراک رکھ کر صندوق کو دریا میں ڈال دوں گا، تمہاری قسمت میں جینا لکھا ہے تو بہرحال جیو گی، بادشاہ کی تلوار سے یا زندان میں پڑے پڑے مر جانے سے کہیں اچھا ہے کہ تم کہیں بھیڑ بکریاں چرایا کرو۔ لڑکی صندوق میں بیٹھ گئی۔ وزیر نے صندوق بند کر کے آدھی رات کے وقت اس کو دریا میں ڈال دیا۔ صندوق دریا میں 3 مہینوں تک بہتا رہا۔ لڑکی نے ایک ایک دن کی خوراک 4 دن کھا کر اپنے آپ کو کسی طرح جلائے رکھا۔ ایک ملک میں کارا شاہ نام کا ایک بادشاہ تھا، وہیں ایک بوڑھا آدمی بھی رہتا تھا جس کے بہت سارے پوتے تھے لیکن گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ پہاڑی جنگل سے بادشاہ کے لیے لکڑیاں اکٹھا کر کے لایا کرتا تھا۔ وہ ایک دن اپنی کلہاڑی کندھے پر رکھے اور رسی کمر کے گرد لپیٹے لکڑیاں جمع کرنے کے لیے شہر سے باہر نکل آیا۔
उसने लकड़ियों का एक गट्ठा जमा कर लिया और वापस जाने ही वाला था कि उसे शदीद प्यास महसूस हुई। पास ही एक दरिया बहता था। वो लकड़ियों का गट्ठा वहीं छोड़कर पानी पीने के लिए दरिया पर आया। देखता क्या है कि दरिया में किनारे किनारे एक संदूक बहता चला आ रहा है। वो फौरन अपने कपड़े उतार कर पानी में उतरा और संदूक को खींचता हुआ किनारे पर ले आया। उसने चारों तरफ खूब देखा भाला, लेकिन उसकी समझ में न आया कि इसको किस तरह खोला जाए। तब उसने अपनी कुल्हाड़ी से संदूक के ढकने में एक सुराख बनाया और अंदर झांका तो वहां एक निहायत हसीन लड़की लेटी हुई नजर आई। बूढ़ा दंग रह गया। उसने सोचा कि ये शायद किसी सौदागर की बेटी होगी, बाप के साथ सफर पर निकली होगी, जहाज डूब गया होगा और संदूक पानी के ऊपर रह गया होगा। ए लड़की, तुम जिंदा हो कि मुर्दा? बूढ़े ने लड़की को आवाज दी। मैं जिंदा हूँ, हुस्न आबाद ने अंदर से जवाब दिया और उठकर बैठ गई। बूढ़ा सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अगर संदूक को छोड़कर लकड़ियां महल में ले जाऊंगा, मुझे उनके ओज़ बादशाह से 20 तिनगे से ज्यादा नहीं मिलेंगे, और लकड़ियों को छोड़ दूं और संदूक को उठाकर महल में ले जाऊं तो उसका कुछ भी नहीं मिलेगा। बेहतर यह है कि संदूक को बाजार ले जाकर बेच दूं। आखिर किसको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है? ये तय करके बूढ़ा संदूक को लेकर बाजार पहुंचा। वो अभी बाजार में दाखिल ही हुआ था कि कारा शाह उधर से आ निकला और उसको देख लिया। लकड़ियां कहाँ हैं? उसने कड़क कर बूढ़े से पूछा। मेरी लकड़ियों की फिक्र न करके तुम किसी के हाथ चोरी करने गए और संदूक उठा लाए हो। ये कहते हुए उसने अपनी तलवार खींच ली और उससे बूढ़े के 2 टुकड़े कर डाले। फिर उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि संदूक को उठाकर महल ले चलो। महल में संदूक को खोला गया तो हुस्न आबाद का हुस्न देखकर बादशाह उस पर लट्टू हो गया और उसी वक्त लड़की से कहा कि मुझसे शादी कर लो। हुस्न आबाद रो पड़ी। उसने अपने आप से कहा, मैं तो किसी गरीब से शादी करने का अहद कर चुकी हूँ, अब क्या करूँ? फिर उसने बादशाह से कहा, आप मुझे 40 दिनों की मोहलत दीजिए। मैं बराबर 3 महीने तक संदूक के अंदर पड़ी रही हूँ, तंग आ गई हूँ, थक गई हूँ। अब जरा आराम कर लूँ, लड़कियों के साथ खेल लूँ, तफरीह कर लूँ। तुमने अभी इसी दम मुझसे शादी ना की तो मैं तुमको मार डालूंगा। कारा शाह ने दांत पीस कर कहा। तो फिर कम से कम 3 दिनों की छुट्टी दीजिए, लड़की ने गिड़गिड़ाकर कहा। तुम्हारे आराम और तफरीह के लिए 1 ही दिन काफी है, कारा शाह ने सख्ती से कहा और हुस्न आबाद को छोड़ दिया। 40 लड़कियों को उसके साथ कर दिया और उनको ताकीद कर दी कि वो इस पर बराबर निगाह रखें, एक लम्हे के लिए भी इसको आंखों से ओझल न होने दें। हुस्न आबाद 40 लड़कियों से घिरी हुई बादशाह के बाग में आई। बाग के उस तरफ दरिया बहता था। हुस्न आबाद ने लड़कियों से कहा कि चलो चलकर दरिया में नहाएं। वो सब दरिया के किनारे आईं। हुस्न आबाद जो ही पानी में उतरी, एक हैबतनाक मछली जाने कहां से आ निकली और लड़की को निगलकर फिर पानी में गायब हो गई। लड़कियां दौड़ी हुई महल में आईं और बादशाह को इस हादसे की इत्तला दी। ये खबर सुनते ही कारा शाह करा उठा। उसने अपना ताज, सोने की पेटी, शाही लिबास सब उतार उतार कर फर्श पर फेंक दिया और महल छोड़ के शहर से निकलकर बियाबानों की तरफ चला गया। अब आइए शहर जरजान का हाल सुनिए। एक दिन दरिया के किनारे पर एक नौजवान चरवाहा भेड़ बकरियां चरा रहा था। कुछ माहीगीर दरिया में जाल डालकर मछलियों का शिकार कर रहे थे। चरवाहे ने माहीगीरों को अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा, मेरे बाप और मैं दोनों भूखे हैं, शहर जाकर रोटी लाने की कोई सूरत नहीं है। बाप बीमार हैं और मैं यहाँ भेड़ बकरियों को चराने में मसरूफ हूँ। मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तुम लोग मुझे कोई मछली दे देना, मैं उसे ले जाकर अपने बाप को खिला दूंगा। अच्छी बात है, माहीगीरों ने कहा। अब की जो कुछ जाल में आएगा वो तुम्हारा है। ये कहकर उन्होंने अपना जाल खींचा तो क्या देखते हैं कि उसमें एक बहुत ही बड़ी मछली फंसी है। उन्होंने वो मछली चरवाहे को दे दी। चरवाहे ने उसको उठाना चाहा तो उठा न सका, इतनी वजनी थी वो मछली। नौजवान 5 बैलों की मदद से खींचता हुआ उसको अपने घर लाया। मछली को अपने बाप के पास छोड़कर वो खुद फिर अपनी भेड़ बकरियों के पास लौट गया। बूढ़ा मछली को पाकर बहुत खुश हुआ। उसने छुरी से उसका पेट चीरा तो क्या देखता है कि वहाँ एक लड़की पड़ी हुई है। बूढ़े ने लड़की के मुंह में पानी के कतरे टपकाए। लड़की को होश आ गया और उसने आंखें खोल दी। वो उठ खड़ी हुई और बूढ़े को झुककर सलाम किया। फिर उसने कहा, बाबा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। बूढ़े ने मछली का एक टुकड़ा काटा और उसे तलकर लड़की को दिया। उसने मछली खा ली और फिर बूढ़े से पूछा, बाबा आप क्या काम करते हैं? मैं चरवाहा था, बूढ़े ने बताया। अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब ये काम मेरी जगह मेरा बेटा करता है। ये सुनकर लड़की बेहद खुश हुई और कहने लगी, मेरी मुराद पूरी हो गई बाबा, अगर आप कहें तो मैं आपके बेटे से शादी कर लूँ। मेरी माँ भी एक गरीब घराने की बेटी थी। शादी के लिए हमारे पास रुपये कहाँ? बूढ़े ने कहा। कोई बात नहीं, लड़की ने जवाब दिया। जब मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ तो लोगों को दावत देने की कोई जरूरत नहीं है। बूढ़े ने उसी दिन हुस्न आबाद के साथ अपने बेटे का निकाह पढ़वा दिया। निकाह के अगले दिन सुबह हुस्न आबाद ने अपने सर के बाल एक रुमाल तले छुपा लिए और आस्तीन चढ़ाकर घर के काम काज में जुट गई। वो देचकी के पास आई तो देखा कि देचकी पर मैल की इतनी मोटी तह जम गई है कि उसके दोनों कुंडे एक दूसरे से मिलते मिलते रह गए हैं। बाकी बर्तनों का भी यही हाल था। हुस्न आबाद ने खुरच खुरच कर मांझ कर उन सबको चमका दिया। फिर उसने घर के आंगन में झाड़ू देकर उसे साफ सुथरा कर दिया। सब मैले कपड़े धो डाले। ये सब देखकर बूढ़े का दिल दिन की तरह रोशन हो गया।
वो उठकर अपनी बहू के पास आया और बड़ी मोहब्बत से उससे कहा, जुग जुग जियो बेटी, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे घर गृहस्थी का कोई काम नहीं हो पाता और मेरा बेटा पौ फटते ही चला जाता है और अंधेरा होते घर लौटता है। लेकिन हम कितने खुशकिस्मत है कि तुम हमको मिल गई। ये देखकर कि तुम इतनी मेहनत करती हो, मेरा भी जी चाहता है कि तुम्हारी कुछ मदद करूं। मुझे भी कोई काम बताओ ना। हुस्न आबाद ने अपने एक कान का बाला उतारा और उसको बूढ़े के हाथ में देते हुए उससे कहा, आप इसको बाजार ले जाइए, कोई इसका दाम पूछे तो कह दीजिए कि तुम खुद ईमानदारी से कुछ दे दो, वो जितना दे उतने ही में उसको बेच दीजिए। बूढ़ा बाले को लेकर बाजार पहुंचा। एन उस वक्त बड़े बड़े सौदागर बाजार में आए हुए थे। एक सौदागर ने देखा कि एक बूढ़ा एक निहायत खूबसूरत बाले को हाथ में लिए खड़ा है। उसने बूढ़े के पास आकर पूछा, बाबा इसके क्या दाम है? आप खुद ईमानदारी से कुछ दे दीजिए। बूढ़े ने जवाब दिया। सौदागर ने एक हाथ लंबी एक संदूकची सोने से भरकर बूढ़े को देते हुए पूछा, ये काफी है या कुछ और दूं? मैंने तो कह दिया है कि खुद ईमानदारी से कुछ दे दीजिए। बूढ़े ने जवाब दिया। सौदागर ने एक थैली भर सोना और दिया और उस सारी दौलत को लाद कर घर ले जाने के लिए अपने गधे को भी दे दिया। बूढ़े ने दिल में सोचा, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? अच्छा, मैं अभी इसको सबक सिखाई देता हूँ। इसका सारा सोना गधे पर लाद कर ले चलता हूँ, फिर ये मेरे पीछे पीछे भागता फिरे। ये सोचकर उसने सारा सोना गधे पर लादा और चल दिया। इधर सौदागर सोच रहा था कि काश ऐसा ही एक और बाला मिल जाए तो मैं ये जोड़ा अपने बादशाह को देकर 7 अकलीम का खराज और बाज जमा करने का ठेका ले लूं। बूढ़े ने सारा सोना घर लाकर अपनी बहू के हवाले कर दिया। अगले दिन हुस्न आबाद ने अपने दूसरे कान का बाला भी उतार कर अपने ससुर को दिया कि इसको भी बेच आइए। बूढ़ा बाले को लेकर फिर बाजार पहुंचा। फिर उसी सौदागर ने उसके पास आकर पूछा, बाबा इसके क्या दाम है? मैं इसको तुम्हारे हाथ नहीं बेचूंगा। बूढ़े ने कहा, पिछली दफा तुमने मेरा खूब मजाक उड़ाया। अच्छा तो फिर आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। सौदागर ने कहा। वो बूढ़े को अपने घर ले आया। उसने सोने से भरी 2 संदूकचियां बूढ़े को दे दी। यही नहीं, उसने बूढ़े को एक कीमती चुग्गा भी पहनाया और गधे भी दे दिए। फिर उसने पूछा, बाबा आपका घर कहाँ है? बूढ़े ने सोचा कि अगर मैं अपना घर बता दूंगा तो ये जाकर मुझको लूट लेगा। चुनांचे उसने जवाब दिया, मेरा कोई घर नहीं है। घर आकर बूढ़े ने सारा सोना अपनी बहू को दे दिया। हुस्न आबाद ने ये सारी दौलत अंदर ले जाकर छुपा दी और फिर उसने अपने ससुर और शौहर से कहा, अब आप लोग जाकर 20-25 राज मजदूरों को बुला लाइए, हम यहाँ एक शहर तामीर कराएंगे। वो जाकर शहर से राज मजदूरों को ले आए। हुस्न आबाद ने उन सबसे कहा, आप लोग सब घर जाकर अपने अपने बीवी बच्चों को भी ले आए। वो सब जाकर अपने बीवी बच्चों को ले आए तो शहर की तामीर का काम शुरू हो गया। हुस्न आबाद की हिदायत पर राज मजदूरों ने सबसे पहले एक लंबी चौड़ी दीवार बनाना शुरू की। सब मजदूरों को और उनके बाल बच्चों को रोज खाना खिलाया जाता और कुछ पैसे भी दिए जाते थे। हुस्न आबाद ने उन सबको अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा दिए। हुस्न आबाद की फयाजी का हाल सुनकर हर तरफ से और भी मजदूर आने लगे। वो सबकी आओ भगत करती, सबको खिलाती पिलाती और कपड़े बनवा कर देती थी। पास से गुजरने वाले राहगीर पूछते, ये दीवार कौन बनवा रहा है? इसको चरवाहे की बीवी बनवा रही है। मजदूर जवाब देते और पूछने वालों से कहते, काम करना हो तो तुम भी आ जाओ, यहाँ तुम्हें अच्छी मजदूरी मिलेगी और खाने पीने और पहनने को भी मिलेगा। 15 दिन के अंदर अंदर 5000 खानदानों के लोग वहाँ जमा हो गए। उन्होंने 3 महीनों के अंदर अंदर इतनी जमीन के गिर्द दीवार खड़ी कर दी जिसकी लंबाई और चौड़ाई 10 दिनों में तय होने वाले रास्ते के बराबर थी। उस दीवार में 12 दरवाजे बनाए गए और हर दरवाजे पर हुस्न आबाद की तस्वीर लगाकर नीचे लिख दिया गया, इस शहर का नाम है हुस्न आबाद। जिस किसी को रोटी कपड़े की जरूरत हो यहाँ आकर नौकरी करे। 1 साल के अंदर अंदर 75,000 खानदान आकर बस गए। हुस्न आबाद ने हर एक खानदान को दालान और कोठरी समेत एक अलग मकान बनवा दिया। शहर के हर एक दरवाजे पर 25 सिपाही खड़े कर दिए और उनको हुक्म दिया, जो आदमी देर तक मेरी तस्वीर को देखता रहे उसको पकड़कर मेरे पास लाया करो। उस नए शहर की शोहरत शहर जरजान के बादशाह तक पहुंच गई। वो आग बगूला हो गया और गरज कर बोला, इस मुल्क में वो कौन है जिसको मेरी अजमत व सुरूत पर हाथ उठाने की जुर्रत हुई है? ये कौन मेरी जागीर में शहर आबाद कर रहा है? उसकी जान की खैर नहीं, मैं अभी जाकर उसका सर तन से जुदा किए देता हूँ। बादशाह शहर हुस्न आबाद पहुंचा और दरवाजे पर पहरेदारों को देखकर उनसे पूछा, ये शहर किसने बनवाया है? जिसकी ये तस्वीर है उसी ने बनवाया है। पहरेदारों ने जवाब दिया और उन्होंने दरवाजे पर लगी हुई हुस्न आबाद की तस्वीर की तरफ इशारा किया। जब हम आपके यहाँ नौकरी करते थे तो आप हमारे बाल बच्चों की फिक्र करना तो दरकिनार, खुद हमको भी पेट भर खाने को नहीं देते थे। और हुस्न आबाद न सिर्फ हमारी बल्कि हमारे बाल बच्चों की भी खूब अच्छी तरह परवरिश कर रही है। वो हमें किसी चीज की कमी महसूस नहीं करने देती और हमारे बच्चों को भी पढ़ाती है। हमारे बहुत से बच्चे तरह तरह के हुनर सीख गए हैं। बादशाह ने हुस्न आबाद की तस्वीर देखी तो उस पर आशिक हो गया। वो शहर में दाखिल हुआ और महल में पहुंचा। हुस्न आबाद के सिपाहियों ने आकर उसको इत्तला दी, शहर जरजान का बादशाह आया है। उसने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि आप उसकी बीवी बन जाएं। ये सुनकर हुस्न आबाद को गुस्सा आ गया और उसने हिदायत की कि बादशाह को अंदर लाया जाए।
वो अंदर आया तो हुस्न आबाद ने उससे पूछा, अरे बादशाह, बताओ तो सही, तुम्हारी कितनी बीवियां हैं? मेरी 40 बीवियां हैं, बादशाह ने अकड़ कर जवाब दिया। 40 बीवियां हैं और अभी कुछ अरमान बाकी हैं? हुस्न आबाद ने तंजिया अंदाज में कहा। बादशाह जल ही तो गया। उसने कड़क कर कहा, अच्छा, तुम मुझे ताना भी देने लगी? तुम गदागर की ये हिम्मत? ये कहकर उसने अपनी तलवार खींच ली, लेकिन हुस्न आबाद के नौकर दौड़कर आए और बादशाह को पकड़ लिया। उन्होंने उसके हाथ पांव जंजीरों में जकड़ दिए और ले जाकर जिंदान में डाल दिया। बादशाह का हश्र देखकर मुल्क के बाशिंदे बहुत खुश हुए। उनके नुमाइंदे हुस्न आबाद के पास आए और उससे गुजारिश करने लगे कि शहर जरजान का नज़्म नश्क चलाने का काम आप अपने जिम्मे ले लें। हुस्न आबाद राजी हो गई। चंद महीने गुजर गए। एक दिन एक दरवेश शहर हुस्न आबाद के दरवाजे पर आया और वो हुस्न आबाद की तस्वीर देखकर रो पड़ा। पहरेदार उसको पकड़कर मलका हुस्न आबाद के पास ले चले। हुस्न आबाद खिड़की में से देखकर उसको पहचान गई। ये बादशाह कारा शाह था, जो हुस्न आबाद को अपनी बीवी बनाने के लिए बेताब था और उसको आराम और तफरी के लिए सिर्फ एक दिन की मोहलत दी थी। हुस्न आबाद तख्त पर बैठ गई और अपने चेहरे पर नकाब डाल लिया। कारा शाह को अंदर लाया गया तो हुस्न आबाद ने उससे पूछा, दरवेश, तुम क्यों रो रहे हो? आप मेरी हकीर सी जान बख्श दे तो अर्ज करूं। दरवेश बोला। हुस्न आबाद ने कहा, हाँ कहो, बख्श दी तुम्हारी जान। दरवेश ने कहा, मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी, उसका नाम हुस्न आबाद था। आज इस शहर के दरवाजे पर मैंने उसकी तस्वीर देखी। हुस्न आबाद ने कहा, वो लड़की खुद कहाँ है? दरवेश ने कहा, वो नहाने गई और दरिया में डूब गई थी, मुझे यही बताया गया था। लेकिन अगर पता चला कि उसने मुझे धोखा दिया है, कनीजों को रिश्वत देकर भाग गई है, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं उसको जंगली घोड़े की दुम से बंधवा कर बियाबान में छोड़ दूंगा, ताकि वो उस बदमाश को कांटों पर इस तरह घसीटता फिरे कि एक एक कांटे पर उसके जिस्म का एक एक टुकड़ा रह जाए। हुस्न आबाद ने कहा, तुम्हारे आगे उसका कोई कसूर नहीं है, तुम उस पर गुस्सा मत करो। ये मेरी वही हुस्न आबाद तो नहीं है? बादशाह कारा शाह ने सोचा और उसने कपड़ों के अंदर छुपाई हुई अपनी तलवार निकाल ली और उसको हुस्न आबाद के सर के ऊपर करके गरजते हुए कहा, अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारी सूरत देखना चाहता हूँ। लेकिन नौकर दौड़कर आए और कारा शाह को पकड़कर जिंदान में डाल दिया। उसके बाद हुस्न आबाद ने अपने बड़े वजीर को बुला लिया और उससे कहा, अब तुम जरा गिनकर देखो कि हमारी फौज में कितने सिपाही हैं। वजीर ने हिसाब लगाया, मालूम हुआ कि कुल मिलाकर 7 लाख घुड़सवार और प्यादे हैं। उन सबको सफर के लिए तैयार कर लो। हुस्न आबाद ने वजीर को हिदायत की। 40 दिनों में फौज सफर के लिए तैयार हो गई। फिर हुस्न आबाद अपने चरवाहे शोहर के हमरा और अपनी फौज को साथ लिए हुए अपने बाप की सल्तनत की तरफ चल पड़ी। सहराओं और बियाबानों से गुजरती, पहाड़ों और दरियाओं को पार करती, झीलों को पीछे छोड़ती हुई फौज चलती रही, आगे बढ़ती रही। फौज चलती रहे और आप आइए अब जरा हुस्न आबाद के जालिम बाप का हाल सुनिए। एक दिन उसने ख्वाब में देखा कि एक चील कहीं से उड़कर आई और उसको उठाकर ऊपर ले गई। आसमान और जमीन के बीच पहुंचकर चील रुक गई और उससे कहा, तू मेरा गुलाम बन जा, वरना मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगी। जालिम बादशाह ने चील से गिड़गिड़ाकर कहा, मेरा तख्त व ताज ले लो, मेरी सल्तनत और मेरा खजाना ले लो, मेरी जान बख्श दो। चील ने जवाब दिया, तेरी दौलत और सल्तनत की मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं तो तेरी बेटी हुस्न आबाद का खून पीना चाहती हूँ। अपनी बेटी का नाम सुनकर बादशाह रो पड़ा। इतने में अचानक पहाड़ के पीछे से हुस्न आबाद नमूदार हुई। उसके एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में सरखाब के गोश्त के बने हुए कबाब की सीख। हुस्न आबाद ने आकर अपनी तलवार से चील के 2 टुकड़े कर दिए, हाथ बढ़ाकर अपने बाप को कमर से पकड़ लिया और आहिस्ता से नीचे लाकर जमीन पर रख दिया। फिर उसने कबाब अपने बाप के हाथ में थमाकर उससे कहा, अब्बा जान, अगर मुझसे कोई खता हुई हो तो उसको माफ कर दीजिए। बादशाह की चीख निकल गई और जाग गया। सुबह को उसने 400 सलाहकारों और 40 वजीरों को बुला लिया और उनसे कहा, अगर तुम मेरे ख्वाब की ताबीर ना बता सके तो तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बड़े वजीर ने खड़े होकर कहा, अगर आप मेरी जान बख्श दें तो मैं आपके ख्वाब की ताबीर बता दूं। हाँ बताओ, बादशाह ने गरज कर कहा। बड़े वजीर ने कहा, जिस चील ने आपको उठा लिया था वो कोई दुश्मन है। जिस वक्त वो हमारे मुल्क पर कब्जा करके आपको कैदी बना लेगा, उस वक्त आपकी बेटी आकर आपको आजाद करा लेगी, लेकिन आपके तख्त ताज किसी दूसरे के हाथ में चले जाएंगे। झूठ, बादशाह गरजा, मेरी सरकश बेटी को तो खाक में मिले अरसा हो चुका है। जरूर तुम मुझको डराकर चैन आराम से महरूम करना चाहते हो। मैं तुमको जिंदान में डाल दूंगा ताकि मेरी बेटी के साथ तुम भी वहीं मरखप जाओ। बादशाह ने जल्लादों को बुलाकर अपने बड़े वजीर को जिंदान में डलवा दिया। लेकिन उसी दिन से बादशाह अपना चैनो आराम बिल्कुल खो बैठा। वो रातों को डर के मारे सो नहीं पाता था। रात भर अपने बिस्तर पर लौटता रहता या फिर अपनी ख्वाबगाह के अंदर इधर उधर घूमता फिरता था। एक हफ्ते के बाद एक एलची उसके पास आ पहुंचा। उसने आते ही ऐलान किया, शहर जरजान का बादशाह अपना लश्कर लेकर हमला करने आ रहा है। जल्दी से अपने दोनों हाथ सीने पर रखकर और सर झुकाकर उसका इस्तकबाल करो। अगर तुमने अपनी मर्जी से अपनी सल्तनत को उसके हवाले ना किया तो पछताओगे। हमारे बादशाह ने तुम्हारे लिए सलाम और इनाम भेजा है। ये कहकर एलची दौड़कर बादशाह के पास गया और उसके मुंह पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। वो माफी मांगता हुआ अपने तख्त के पीछे छुप गया।
ایلچی چلا گیا تو اس نے تھر تھر کانپتے ہوئے اپنے وزیروں سے کہا، ایلچی کا یہ حال ہے تو بھلا اس بادشاہ کے سپاہی کیسے ہوں گے؟ اب کیا کیا جائے؟ کوئی مشورہ دو۔ ہم آپ کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتے، وزیروں نے جواب دیا۔ ہم چاہے اچھا کہیں یا برا، ہر صورت میں آپ ہم کو قتل کرا دیں گے۔ آپ بڑے وزیر کو زندان سے نکالیں، وہ انعام و اکرام لے کر شہر جرجان کے بادشاہ کے پاس جائے، پھر جو ہوگا سو ہوگا۔ بادشاہ نے بڑے وزیر کو زندان سے نکالا اور اس سے کہا، تم ابھی شہر جرجان کے بادشاہ کے پاس چلے جاؤ اور دوہرے تہرے ہو کر اس کو سلام کرو۔ وہ اگر کہے تو میری سلطنت اسے دے دو۔ کل والے تھپڑ سے میرا گال ابھی تک دکھ رہا ہے۔ اگر اس نے کہا کہ بادشاہ کی جان لوں گا تو میں درویش کا ڈنڈا لے کر شہر سے نکل جاؤں گا، ویسا کوئی دوسرا تھپڑ اب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وزیر ہنس پڑا اور اس نے بادشاہ سے کہا، جب میں نے آپ کے خواب کی تعبیر بتائی تھی تو آپ کو غصہ آ گیا تھا، اب بتائیے میں نے سچ کہا تھا کہ جھوٹ؟ اب دشمن آئے گا، وہ آپ کو کسی جنگلی گھوڑے کی دم سے باندھ کر گھوڑے کو بیابانوں کی طرف ہانک دے گا، گھوڑے کو کانٹوں پر گھسیٹتا پھرے گا اور آپ ایک کتے کی موت مر جائیں گے۔ بادشاہ کیچڑ میں پھنسے ہوئے گدھے کی طرح گردن جھکائے چپ رہ گیا۔ بڑا وزیر قیمتی سوگات لے کر چل پڑا۔ راستے میں اس نے شہر جرجان کے بادشاہ کے نام ایک خط لکھا اور نیچے اپنا نام درج کر کے اپنے ایلچی کے ہاتھ بھیج دیا۔ وہ خط حسن آباد کو مل گیا۔ خط پڑھنے کے بعد حسن آباد نے بڑے وزیر کو اپنے پاس طلب کیا۔ وزیر نے اندر آ کر بہت جھک کر سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ اس نے ادھر ادھر نظر ڈالی تو دیکھا کہ سامنے بادشاہ بیٹھا ہے۔ یہ حسن آباد کا شوہر چرواہا تھا۔ تخت کے ارد گرد 40 سپاہی بادشاہ کے اشارے کے منتظر ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور تخت کے ایک طرف کوئی منہ پر نقاب ڈالے بیٹھا ہوا ہے۔ اے بڑے وزیر، اس نقاب والے شخص نے کہا، تمہیں اکیلے ہماری چھاونی میں آتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ یہاں تمہاری حمایت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اگر میں تم کو مار ڈالوں تو؟ بڑے وزیر نے حسن آباد کی آواز کو پہچان لیا۔ اس نے فوراً جواب دیا، جس کو خود ہی موت کے منہ سے بچایا ہو کوئی اس سے کیوں ڈرے؟ تب حسن آباد نے اپنے منہ کا نقاب اٹھا دیا اور اٹھ کر بڑے وزیر کے پاس آئی۔ اے میرے محسن، اے نیک دل انسان، اس نے وزیر سے مخاطب ہو کر کہا، آپ ہی کی بدولت میں آج تک زندہ ہوں۔ اگر میں اپنے باپ کی سلطنت آپ کے حوالے کر دوں تو کیا آپ اس کا نظم و نسق عدل اور انصاف سے چلائیں گے؟ ارے بیٹی، میں تو اب بوڑھا ہو چکا ہوں، بڑے وزیر نے جواب دیا۔ اگر تم نے یہ مملکت میرے حوالے کی تو میں اسے اس شخص کو سونپ دوں گا جو میرے سامنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ حسن آباد اپنی فوج کو لے کر شہر میں داخل ہوئی۔ بادشاہ کی تلاش کی جانے لگی لیکن وہ کہیں بھی نہ ملا۔ وہ تو ڈر کے مارے اسی دن بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد کبھی کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ حسن آباد اپنے چرواہے شوہر کے ساتھ مل کر ملک پر حکومت کرنے لگی۔ جتنے بے گناہ زندان میں پڑے ہوئے تھے اس نے ان سب کو آزاد کر دیا۔ ان میں سے متعدد کو اس نے مختلف شہروں کا حاکم مقرر کر دیا۔ اس طرح حسن آباد اپنی مرادیں پا گئی۔